Firstly, sit in any comfortable position. Cross leg. Simply cross legs. Padmasana, Sukhasana. Hands on your knees. In Gyan Mudra. Now we start the today's session with Shanti Pata followed by 3 Omkara. Now deep inhale. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः। And rough. Make a cup shape on your hand and close your eyes. Now open your eyes. Now I will tell the meaning of the prayer. May all be happy. May all be free. Feel free from illness. May all see auspicious. Now we will practice diaphragmatic breathing. In this breathing, as we inhale, our diaphragm goes down and our abdomen outward. Abdomen goes in and diaphragm in its initial state. Now we are going to telling about the technique of the diaphragmatic breathing. Now slowly lie down on your stomach with your feet about shoulder width apart. Point your toes outward. Fold your arms in front of your body. Resting each hand on the opposite upper arms. Rest your forehead on the forearms. Position the elbows and lower arms so that your chest is off the floor. Become aware of your breathing. Observe the effect of diaphragmatic breathing. As you exhale, feel the pressure of your abdomen against the floor decreasing. As you inhale, feel the pressure of your abdomen against the floor increasing. Make sure become aware of your breathing. During exhalation, the pressure of the abdomen against the floor reduces, and during inhalation, one feels the pressure between the abdomen and the floor. The floor provides the feedback mechanism to oneself. Now slowly come back, both feet together, hands by the side of your body, and slowly sit in sitting posture. Now we will do neck stretch. First neck up and down. As we inhale, our head upwards. Now slowly exhale.
and your chin touches the collarbone. Inhale, inhale, move your chin upward and feel the stretch of the neck muscles, front neck muscles. Exhale. Now feel the stretch back of the neck muscles. Inhale. Now we will do the next practice of neck. Now our next practice is chin over shoulder. As we inhale, our chin moves to the right side. And make sure your shoulder should be relaxed. And as you feel the stretches of the other side of the neck, now inhale, come back to middle, exhale, go to the other side. Now inhale, come to the center and relax. Now we will do our third practice, ear over shoulder. Now inhale and exhale करते हुए अपने ईयर को अपने शोल्डर पे लगाने की कोशिश करेंगे. ज़बरदस्ती नहीं लगाना है, जितना जाया जा रहा है ना जाए. और ध्यान रहे आपके कंधे कोई ऊपर नीचे ना हो, अपनी अवस्था में रहे और अपने गर्दन की एक तरफ. नाउ इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को आगे लाइए, जैसे कि एक टर्टल अपने साइड से अपनी गर्दन बाहर निकालता है. श्वास पर श्वास चलता रहे. और इनहेल, गो टू सेंटर और एक्सहेल, गो टू बैकवर्ड like a double chin. Now inhale, come to the center. Now we will do our next practice, neck roll. क्या हमको पूरा रोल नहीं करना है, हाफ रोल करना है. अब inhale and exhale, go to the down side. इनहेल करते हुए राइट साइड जाएंगे, अपनी गर्दन को घुमाएंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड से वापस. फिर यहीं से वापस इनहेल, एक्सहेल, गो टू सेंटर. ये
सारी नेक स्ट्रेचेस थी। Now we are going to tell about the asanas. Our first asana is Ardha Chakrasana. Firstly, take the standing position. सबसे पहले सम स्थिति में खड़े रहेंगे और अपने दोनों पैरों के बीच में धीरे से अपने कंधों के इतना गैप लीजिए और अपने हाथों को अपने लोअर बैक में रखिए, उंगली अंदर की तरफ और अंगूठा बाहर की तरफ, और सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कुछ देर इस स्थिति में रुके रहेंगे। इनहेल करते हुए वापस आएंगे धीरे धीरे। Now slowly come back in our initial state, both legs together. Good. Just relax for few breaths. Inhale and exhale, and just feel the effect of the asana. Now we are going to do our second asana practice, which is Utkat Asana, the chair pose. Now just prepare yourself for our second asana practice. For Utkatasana, just take the little distance between your both legs. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप लेंगे अपने कंधों के अकॉर्डिंग. Now slowly take your both hands up over your head, दोनों हाथ ऊपर, and join your palms over your head in Namaskar Mudra. Face front side. Now slowly bend your both legs at the knee. अपने पैरों को घुटने से बेंड करेंगे like a chair, and just try to keep your spine erect and straight in one line. Make sure your knees are not crossing your big toes. ध्यान रखेंगे हमारे बेंडिंग नीज हमारे बिग टोज को क्रॉस ओवर नहीं कर रहे हैं. And just be in this position for few seconds, and just feel the contraction of your thighs muscles. Now slowly come back, straight your both legs, both hands down by the side of your body, and just relax in Samasthiti. Now we will practice our third asana, which is Pavanmuktasana. Slowly lie down on your back in Savasana. Slowly bring your both legs together, hands by the side of your body. Make sure your body alignment should be straight. Now slowly bend your both legs and keep your legs up and bring your knees towards your chest. Now slowly interlock the finger on your knees and press the knees towards the chest, and slowly hand
Lift your head up and your forehead touches the knee. Now slowly release your hand. Release your hand and release your legs. Relax in Savasana. Now slowly come back in sitting posture. Take the one side. And slowly sit in Dandasana. Your back, neck and head will be. Now we will do our last asana, which is Vajrasana, the thunder pose. Slowly bend your both legs one by one and sit on your heels. Make sure your both toes touch to each other and your spine, neck or head straight, chin parallel to the ground and your hand on the thigh. और ये एकमात्र एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये हमारे खाने को पचाने में लाभदायक है। धीरे से वापस आएंगे, वन बाय वन के पैरों को आगे की तरफ खोलेंगे। So now we are talking about the Kapalbhati pranayam. कपालभाति प्राणायाम की विधि हम बताएंगे। सबसे पहले किसी भी सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठना इसमें सही रहेगा और जिनका पद्मासन न लगे वो अर्ध पद्मासन लगा लें और अपनी मेरुदंड को सीधा कर लें। आपकी गर्दन और सिर सीधा रहे और धीरे से आंख बंद करके बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाकर रख लीजिए। अब हम कपालभाति का प्रयास शुरू करेंगे। धीरे से दोनों नाकों से सारी सांस बाहर छोड़ दीजिए और इसमें आपको क्या करना है कि सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ना है। ऐसे सांस स्वयं ही अपने आप ली जाएगी। सांस लेते हुए आपको कोई भी किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। ऐसे आपके कंधे रिलैक्स रहेंगे, पूरा शरीर आपका स्थिर रहेगा। बस आपको अपनी पेट को सिकुड़ना है सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए किसी भी तरह का प्रयास नहीं करना है। इसी
इसी तरह अब हम प्रयास को 10 बार करेंगे, इसके 10 राउंड करेंगे। और लंबी गहरी सांस लें और कुछ देर शांत। धीरे से आंखें खोल लीजिए। कपालभाति करने के लाभ हैं, इसका निरंतर अभ्यास करने से आपके पाचन क्रिया सही होती है और आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है। और डायबिटीज़ जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। और इसकी प्रिकॉशंस हैं, मतलब सावधानियाँ, कि इस समय आपके पेट में किसी भी प्रकार का दर्द महसूस हो या आपको चक्कर आने लगे तो अभ्यास को वहीं रोक दें और कुछ देर शांत बैठेंगे और फिर पुनः प्रयास करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट दी चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम एकदम सूर्यभेदी प्राणायाम की तरह है। सूर्यभेदी में हम राइट से इनहेल करते हैं और लेफ़्ट से एक्सहेल करते हैं, और चंद्रभेदी में हम लेफ़्ट से इनहेल करते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं। तो आज हम चंद्रभेदी का प्रयास करेंगे। सबसे पहले किसी भी सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाएं और अपने बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा बना लीजिए और दाएं हाथ में नासिकाग्र मुद्रा। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। शरीर आपका एकदम स्थिर रहेगा। और धीरे से अपने अंगूठे से अपने दाएं नाक को बंद कर लीजिए और धीरे धीरे बाएं नथुने से श्वास को लीजिए। अब अपनी अंगुलियों से बाएं नाक को भी बंद कीजिए और अंतःकुंभक लगाएंगे। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर तक रुकें। धीरे से वापस। अब अपने दाएं नाक को खोलिए और दाएं नाक से सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। और इसी प्रक्रिया को लगभग 2 से 3 मिनट तक लगातार कीजिए। तो चंद्रभेदी प्राणायाम के लाभ बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा है और इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है और मन शांत होता है। चंद्रभेदी प्राणायाम की सावधानियाँ: लो ब्लड प्रेशर वाले
रोगी इसे ना करें और इस प्राणायाम को सर्दियों में ना करें। नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम की विधि हम शुरू करते हैं। धीरे से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों में चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। आपका मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सर सीधा रहे। धीरे से आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। श्वास पर श्वास एकदम धीमा हो। धीरे से अपना ध्यान अपने गले की ओर ले जाएं और धीरे से गले को सिकोड़िए। मतलब उस पर ध्यान लगाइए कि श्वास का आवान जावान पता चले और हल्की सी आवाज़ आएगी। अब अंतर कुंभक लगाएंगे। धीरे से अपने दाएं नथुने को बंद कीजिए और बाएं नथुने से सांस छोड़ दें। इस अभ्यास का 2 से 3 मिनट तक प्रयास करें। इस प्राणायाम को करने से आपके मन में शांति मिलती है और योग में इसका अभ्यास तांत्रिक तंत्र और मन को शांत करने के लिए किया जाता है और आत्मिक स्तर पर भी इसका अभ्यास करने से शांति मिलती है। Now we are going to some meditation practice. Firstly, sit in comfortable position. Your spine, head, neck straight, and your hand make ज्ञान मुद्रा और चिन मुद्रा। एंड आपका पूरा ध्यान आपकी सांस पर रहे। मन आपका एकाग्र रहे, सिर्फ सांस पर लगा रहे। धीरे से अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। Now we are going to do practice of Pranav Japa. Patanjali says in his Yoga Sutra, तस्य वाचक प्रणव। ईश्वर का वाचक शब्द ओम है। प्रणव को ही ओम बोलते हैं और ओम ही प्रणव है। तो अब हम ओम शब्द का जाप करेंगे।
और आपका मन पूरी तरह से ओम शब्द की गुंजन में रहे। तो टेक अ डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए ओम का जाप शुरू करेंगे। Now slowly join your both palms. We are going to end this session with Shanti Pata, Purnamada, followed by 3 Omkara. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti। कुछ देर शांत बैठेंगे, अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, अपने लिए उनसे कामना कीजिए, धैर्य, बल, बुद्धि की कामना कीजिए। धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी हथेलियों से अपनी आँखों को ढक लीजिए। हाथों की गर्माहट महसूस कीजिए। धीरे से हल्की सी मालिश, चेहरे का स्पर्श, पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।